Good morning, students. Again, we will take your chapter 1 number system and the revision of the MCQs questions from NCERT exemplar. Okay. So कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कल तक कंप्लीट हो गए थे हमारे क्वेश्चंस. And now I am taking your 13th question MCQs, and you have to now more focus on your MCQs questions, 1 marks, and these questions solved by you have to take the proper. आपको पहले सॉल्व करने हैं, तभी आपने आंसर्स पर टिक करना है. ओके. तो क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/√9 minus √8 is equal to, you have given 4 options in this question. The first option is given you half bracket में 3 minus 2√2, and the B option is given you 1/3 plus 2√2, and the C option is 3 minus 2√2, and the last option is 3 plus 2√2. Now student, बिना सॉल्व किए तो आप ऑप्शन पर टिक नहीं कर सकते. यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व 1/√9 minus √8. So when the denominator is given in the root form, so you have to make it in the, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे. और when you are rationalizing the denominator, साइन जो है वो क्या हो जाता है, it is change. √9 plus √8, and here √9 plus √8. Now you have to multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator. √9 square minus √8 square. ये कैसे आया आपका डिनोमिनेटर में a square minus b square? Because one identity is given a minus b into a plus b, that is equal to a square minus b square. तो मैंने यहाँ पर your a is given √9 and b is given √8. So you have to multiply a square minus the identity is a square minus b square. So cancel this one. So it is equal to √9 plus √8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, it is equal to 1. So when you will take the square root of 9, it is equal to 3, and when you will take the square root of 8, you have to make the factor of 8, that is equal to 4 into 2, and the square root of 4 is equal to 2. So your answer is, which option is correct here? Your D option is correct here. Okay. Without solve you cannot judge the answer कि हमें कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा आंसर it is correct. So first you have to take out the solution on your rough page and then you tick the answers. Okay. Next question is same, but the question is different. So see the next question also, question number 14. And student, you again try to solve these questions. और इस टाइप के questions अगर आपको और बुक से भी available होते हैं, and I have already sent you so many assignments. So you have to solve those assignments, and 1 marks question जो है, now you have to focus more on the MCQ question. So your 14th question is, after rationalizing the denominator of, अगर आपने, if you will rationalize the denominator, now the question is given 3√3 और ये डिनोमिनेटर में, और -2√2. यहाँ पर न्यूमरेटर में you have given the 7. This is your statement and we get the denominator as. आपको ये बताना है कि डिनोमिनेटर क्या आएगा. सारे क्वेश्चन का आंसर ओनली डिनोमिनेटर you have to check and write down the answer.
आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो अच्छी तरह से रीड करनी है कि क्वेश्चन क्या चीज पूछ रही है. Given in the question, after rationalizing the denominator of 3 root 3 minus 2 root 2, we get the denominator. इन सब चारों ऑप्शन में से कौन सा डिनोमिनेटर यू विल गेट. तो first you have to rationalize the denominator. When you rationalize the denominator, the sign will change. Here it is given 3 root 3 minus 2 root 2. So when you change, rationalize the denominator, only sign are changing. Okay, minus convert into the plus. So you have to multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator. Now your in the denominator a is given 3 root 3 and b is given you 2 root 2. So when you multiply a minus b into a plus b, that is equal to a square minus b square. So your a is 3 root 3, a square minus b square. Now कुछ स्टूडेंट इसका जब स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ रूट 3 को यहाँ पर कट कर देते हैं और 3 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर नहीं लेते हैं. तो पहले आपको लेना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ 3 एंड देन यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3. इट इज इक्वल टू 3, रूट 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9. सो अगर आप इसको इस तरह से भी लिखते हो 3 root 3 को 3 root 3, क्योंकि यू कैन राइट इट 2 टाइम्स. तो 3 3 9, जो आपका होल नंबर यहाँ पर दे रखा है पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, देन और जो रूट के अंदर दे रखा है तब इसे मल्टीप्लाई करना है. तो 9 into 3 इट इज इक्वल टू 27. अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली नहीं आता तो यू डू अडेप्ट दिस मेथड, आपको ये मेथड से सॉल्व करना, और नहीं तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3. तो 9 into 3 इट इज इक्वल टू 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2. तो सो इट इज इक्वल टू 8. तो 27 में से 8 चला गया, 17 में से 8 गया 19. तो यू हैव टू चेक ओनली द डिनोमिनेटर इन दिस क्वेश्चन. आपको आंसर पूरा नहीं लिखना था, यू हैव टू चेक इन दिस क्वेश्चन द ओनली द डिनोमिनेटर. So in the question the denominator is given 19. So which option is correct here in this question? Your option number B. Okay, in the option B it is given 19. So option B is correct. Now next question is also rationalize the denominator, but it is different. All the questions are different. तो इसीलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन सारे एक बार ये वाले रिवाइज करने हैं और इस तरह के और क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके देखने हैं ताकि क्वेश्चंस में गलती ना हो. सो नाउ यू विल चेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन 15th क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ रूट 32 plus root 48. These questions are not in your NCERT book. So you have to complete the NCERT exemplar book. Thoroughly you have to complete all the questions. Root 32 plus root 48 और denominator में you have given root 8 plus root 12 is equal to, now you have given 4 options, root 2 or B is given 2 and C is given 4 and D option is given 8. Now which option is correct? Okay, now you have to check which option is correct. So first we will solve this question. क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर पे तो टिक लगा नहीं सकते हैं, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. और जब हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो यहाँ पर ओनली साइन आर चेंज. फर्स्ट हियर द साइन इज गिवन प्लस,
so you have to put the sign minus here. आपको कौन सा साइन पुट करना है? माइनस का साइन आपको पुट करना है. तो अब आपका √32 प्लस √58 एंड √8 माइनस √12, आपको इसको सारे से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों का. एंड हियर द आइडेंटिटी इज यूज a plus b, a minus b. Your a is given √8 and b is given √12. So cancel the square with the root. आपने कैंसिल कर दिया. Now √32 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 32 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया 256. Now √32 को √12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 32 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 384. Okay. Now next is √48 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये भी आपका आ रहा है √380. और नेक्स्ट आपका 48 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ रहा है 576. और साइन कौन सा लगेगा? प्लस माइनस माइनस. और यहाँ पर आपको रूट भी लगाना है, क्योंकि अभी हमने रूट हटाया नहीं है. और 8 minus 12 it is equal to -4. Now this is minus 384 and this is your plus 384. ये तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो. Now 256 और 576 ये दोनों क्या हैं आपके? ये दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं. तो अगर किसी बच्चे को परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना नहीं आता, तो मतलब कि अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करके देखेंगे. वैसे तो 16 है, और अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256. तो 256 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे? इन द लास्ट क्लास आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है. आपने प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. आपको राइट हैंड साइड से क्या बनानी है? पेयर्स बनानी है. तो पहले ये 56 पेयर बन गया और एक आपका सिंगल टू नंबर जो है बच गया. तो कौन सा नंबर यहाँ पर हम चलाएंगे? 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा अगर सेम नंबर यहाँ पर लिखना होता है, सेम नंबर ही हमें यहाँ पर लिखना होता है. ये तो छोटा था, तो मेरे को 256 16 का स्क्वायर है. 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 256. बट अगर ज्यादा लार्ज नंबर आ जाता है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपका ये मेथड है. तो आपको मेथड भी आना चाहिए. 2 में से 1 या 1 ऊपर से कैरी कर लिया 56, और 1 में वही सेम नंबर जो आपने चलाया था उसमें सेम नंबर हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पर नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी यहाँ पर वही नंबर आएगा. तो अब जो नंबर आपको यहाँ रखते हैं वही नंबर यहाँ पर. अगर मैं 4 4 रखती हूँ, 24 4 जा 96 हो. लेकिन अगर मैं 6 6 रखती हूँ तो 26 6 जा 156. जो नंबर मुझे यहाँ पर प्लेस करने हैं वही नंबर मुझे यहाँ पर प्लेस करना है. ये स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड है. सो ये 126 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल टू 156. तो 256 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ रहा है? 16. ओके, ये क्वेश्चन मैं अभी ऊपर कर रही हूँ अपना. और 576 का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना बताती हूँ. यहाँ पर माइनस का साइन है और 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. अब हम अभी 256 का किया था और अब 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. 24 होता है, लेकिन फाइंड करना बता दूं मेथड. 576 पेयर बनाए हमने. एक पेयर आपका 76 बन गया और दूसरा पेयर आपका क्या बना? सिंगल नंबर 5 इज लेफ्ट. तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 तो छोटा हो जाएगा. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1, ऊपर से कैरी पूरा पेयर करना है.
और 2 में वही सेम नंबर मैंने ऐड कर दिया, इट इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ पर अगेन 4 रखती हूँ तो 4 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 44 4 जा 176। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इट इज इक्वल टू 24। और हमारा डिनोमिनेटर में क्या दे रखा था आपको, -4 इज गिवन है। सो 24 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा -8 अपॉन -4, तो 4 2 जा 8। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट है? ऑप्शन बी। योर ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक आल्सो। और पूरा सिंप्लीफिकेशन जो है खाली एबीसीडी पर ही टिक नहीं करना है आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन जो है यू विल नोट डाउन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका 16th क्वेश्चन जो दे रखा है वो रूट के ऊपर अगेन रूट दे रखा है, तो देन हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज if root 2 equal to 1.414, you have given the value 414114 फिर आगे 2। ठीक है, हम वैसे 3 डिजिट्स तक की वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन आगे एक वैल्यू और दे रखी है यूज करने के लिए, तो वो भी यूज करेंगे अगर पॉसिबल होगा। तो देन आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट दे रखा है, √2 -1 अपॉन √2 + 1 is equal to, you have given the 4 option. The first one is 2.4142 and the B question is given 5.8282 and the C option is given 0.4142 and the fourth option is given 0.1718. Now without solve आप यहाँ पर टिक नहीं लगा सकते, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, योर क्वेश्चन इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 एंड √2 + 1। और अगर आपको डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर दे रखा है अंदर, हम इसी को रूट के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे। या हमारा डिनोमिनेटर इज गिवन √2 + 1। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द √2 - 1 divided by, divide the numerator and denominator by the same number √2 - 1 upon √2 - 1 सेम नंबर से। ठीक है, यहाँ पर now in the question numerator is given a - b, a - b, then it is equal to a - b का whole square। when you multiply a - b with the a - b, that is equal to a - b whole square। when you are taking the product of the same number तो पावर रेज होती है, बेस आर सेम। ठीक है, a - b is the base एंड पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, 1 + 1 इट इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर a - b और a + b, तो यहाँ पर अगर एक बार ब्रैकेट में प्लस हो और एक बार माइनस हो, देन द आइडेंटिटी इज a² - b²। बच्चे इन दोनों आइडेंटिटीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट दे आर डिफरेंट। यहाँ पर तो आपका a - b का होल स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल नंबर a² - b² है आपका। ठीक है, चेक करो इसको अच्छी तरह से, a + b, a - b, that is equal to
a square minus b square. Now cancel the root with the square. So now √2 माइनस √1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर किया, सॉरी 2 में से 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज इक्वल टू 1. नाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आल्सो. तो जब आप न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट करते हो और 1 का भी स्क्वायर रूट करते हो, सिंगल सिंगल मैंने अभी बता दिए हैं कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल हो जाएगा, तो आपका ये क्या बचेगा √2 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 के ही इक्वल होता है. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू आल्सो बिकॉज इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन द वैल्यू. इट इज गिवन 1.4142. So you have to put the value in place of √2 equal to 1.14412. अब आपको इस प्लेस में क्या पुट करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो आपको जो वैल्यू दे रखी है यू विल पुट द वैल्यू हियर. When you put the value of √2 की वैल्यू क्या है 1.4142 और -1 अपॉन में आपका डिनोमिनेटर में 1 है. तो when you subtract यहाँ पर 1.4142 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल सब्ट्रैक्ट करना आता है ना आपको, यहाँ पर डेसिमल जो है यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर होल नंबर के बाद आप डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट. आपको एक्यूरेट आंसर ढूंढना है, ठीक है, और बिना सॉल्व करे आपको आंसर नहीं पता होगा. फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, then you will pick the answer. Okay, now I am taking your next question. Please note down this question. See the next question, it is given four subroot again 3 2 raised to the power 2 इक्वल्स इसके इक्वल है. ऑप्शन ए इज गिवन 2 raised to the power -3/6, b raised to the power 2 raised to the power -6. This is your second option, and third option is given 2 raised to the power 1/6, and your D option is given 2 raised to the power 6. Which option is correct in this question? तो जब मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से समझाया था, जैसे n सब रूट है n का a का, तो हम किस तरह से फाइंड करते थे, जब हम यहाँ पर रूट हटाएंगे तो ये जो रूट दे रखा है nth रूट ऑफ a, दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/n. 4 रूट है पूरे का, यहाँ पर 3 रूट है 2 रेज टू द पावर 2. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2, इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 अगेन 1/3, एंड हियर इट इज गिवन, पहले हमने ये वाला सॉल्व किया क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2, फिर 4th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 और अगेन रेज टू द पावर 1/3 है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 4 है
फोर्थ रूट आपको फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 1/4। ठीक है, जिस तरह से ये बनाया था हमने, तो ये आपका आ गया 2 रेज टू द पावर 2, और ये आपका आ गया 1/3, 4 जा 12। और व्हेन पावर के ऊपर अगर अगेन पावर होती है, तो ये क्या रूल है, पावर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, n multiplied with the m, it is equal to mn. So when you multiply 2 with 1/12, 2 6 जा 12, तो आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 1/6। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये मैंने 6 लिखा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ इसको मैं, 1/6। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट है। किस तरह से फोर्थ रूट फाइंड करना है, किस तरह से क्यूब रूट फाइंड करना है 2 रेज टू द पावर 2 का, तो फर्स्ट हमने क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 लिया, तो इट इज इक्वल टू 1/3, और फिर तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4। तो पहले ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, देन पावर, टेकिंग पावर एज ए पावर, पावर के ऊपर अगेन पावर हो, देन द पावर आर मल्टीप्लाई टुगेदर। सो n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई m, इट इज इक्वल टू mn या nm, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2 को 1/12 से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/6। सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ सी द 18th क्वेश्चन। The product of 3 cube root of root 2 and 4th root of 2 और into 12th root of किसका है 32, ठीक है, इक्वल टू, योर ऑप्शन इज गिवन रूट 2, second option is given 2, and third option is given 13th cube root of 2, और फिर D option is given 12th root of 32. So which option is correct here? देखो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। एक तो इसका ना, इस टाइप के क्वेश्चन कई और तरह से भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबका जो रूट है यहाँ पर जो फाइंड करना है, जो हाईएस्ट रूट दे रखा है क्यूब रूट वो 12 दे रखा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट दे रखा है, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ क्या है, फोर्थ रूट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो वैसे तो इसके एक तले जो मेथड मैं अभी बता रही हूँ वो देखो, यहाँ पर 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लो, तो 12 भी आना है वैसे तो, 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, इजी बनाने के लिए हमें इसे 12 बनाना है। अगर तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पर अगर मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर जो क्यूब रूट के अंदर है उसकी पावर को भी आप क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 कर देंगे। अब जैसे ये 4 3 जा 12 है, तो मैंने इसको भी 12 बना दिया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 3 कर दिया। और ये 12 1 जा 12 है, इसे 12 ही रहने देंगे, और ये 32 की पावर 1 आ जाए। ठीक है, नाउ अब आपका 12th रूट सबका आ गया, तो 12th रूट ऑफ ये सारे जो हमारे क्यूब रूट में दे रखे हैं, दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 4 इट इज इक्वल टू 16,
2 raised to the power 3 it is equal to 8 into 32. 16 8 जा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 128 और 128 को 32 से मल्टीप्लाई करो। ये आपका आ जाएगा 4096, 12th रूट ऑफ 4096। तो जब आप 4096 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हो तो वो भी आपका 2 रेज टू द पावर 12 ही है। ठीक है, आप बना के देख लो, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096। ओके, तो हाउ यू विल टेक द फैक्टर्स ऑफ 4096? मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ये 2 रेज टू द पावर 12 है, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो यू विल टेक द प्राइम फैक्टर। ये आपका आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स तो बनाने आती है ना आपको। जब तक ये स्मॉल नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक मैं इसे डिवाइड करूंगी उसी नंबर से, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 3 ले लूंगी। अगर 3 से भी नहीं हो रहा देन आई विल सी द नेक्स्ट नंबर। तो ये 2 4 जा 8, 4 आ गया ना यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जब आप इनके ये प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 रेज टू द पावर आपका क्या है, ये 12 ही है ना, 2 रेज टू द पावर 12। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 12, and when you will take out the 12th root of 2 raised to the power 12, so how you will find the 12th root? यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और when the power 2 raised to the power 12 and again the power is given 1/12, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आर मल्टीप्लाइड टूगेदर, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू द पावर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन, 2 रेज टू द पावर 1 जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू 2, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 1 ही है, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 19th question also same, but 20 is very important, so see the 20th questions also, or you will try again these questions. I am repeating again and again. 20 क्वेश्चन आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बेस सेम दे रखे, 256 रेज टू द पावर 0.16 into 256 raised to the power 0.09. Then the base are given, base are equal, तो powers are added together, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 256 0.16 प्लस 0.09, क्योंकि a raised to the power n into a raised to the power n, then the base are equal, the powers are added together. ये रूल्स मैंने एक्सपोनेंट और पावर के आपको बता चुकी हूँ। सो 256 ये ऐड करेंगे आप 16 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 0.25, और 256 आपका फैक्टर्स क्या बनता है, पहले ऑप्शन यू विल चेक। ऑप्शन इज गिवन 4 16 64 और लास्ट इज 256.25। तो यहाँ पर 4 से मैं फैक्टर बना देती हूँ, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 यहाँ पर। तो ये आपका 4 रेज टू द पावर 4 है, और 25 जो है 0.25 आप पॉइंट हटाते हो, यहाँ पर 2 जीरोस मैंने पुट कर दी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4, and now power again taking as a power are multiplied, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो ट्राई कि x के इक्वल क्या है,
तो वो आपको रूट के अंदर एक्स क्यूब और अगेन पावर 2/3 है, तो व्हेन यू टेक आउट द एक्स क्यूब का क्यूब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका बन जाएगा 3/2 और 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा लास्ट क्वेश्चन का। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर एंड नाउ यू विल ट्राई द नेक्स्ट एक्सरसाइज योरसेल्फ। अगर कोई डाउट होंगे तो यू विल आस्क। नाउ स्टूडेंट, ओके, you will try your second chapter of MCQs of your second chapter। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। और कॉपी सब बच्चों ने पूरी कंप्लीट करनी है एंड यू हैव टू, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे फोकस करो। इंटरनल स्टडी अच्छी तरह से हर चैप्टर की आपको करनी है क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको इंटरनली कहीं से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटे, अदरवाइज आपका टाइम मीटिंग का ओवर हो रहा है। आई विल एंड द मीटिंग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।